पुरानी कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में ये बात पूरी तरीके से फिट बैठती हुई नजर आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जमकर तारीफ की है। Said what we all know is true, which is that if President Obama pulled the tariffs that Trump is now putting in place, तो आज यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंडिया के लिए एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशखबरी आ गई है जी। ट्रंप के खुद के लोग उन्होंने ओपनली पैगाम दे दिया ट्रंप सरकार को कि इंडिया को एनिमी मत बनाओ, इंडिया हमारा बेस्ट न्यूट्रल अलाय है साउथ एशिया के अंदर। We look out at the world in 2025, we see a global stage that's more complex, more connected, and more competitive than ever before. And in the middle of that stage, we see two great democracies. The United States of America and the Republic of India, both nations proud, both nations diverse, both nations with dreams as big as the world itself. और दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। बात करने वाले हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। दोस्तों उन्होंने एक भाषण दिया है जो काफी विदेशी मीडिया में वायरल चल रहा है, तो देखते हैं कि आखिर उन्होंने क्या भाषण दिया है। Now, folks might be asking, why is India standing up to the United States? Why now? Why here? Well, the answer isn't about hostility or rivalry for rivalry's sake. It's about maturity. It's about a nation that has grown in confidence, in capability, and in conviction. For decades, India's economic rise has been steady and determined. It's become a hub of innovation, a global supplier of technology, pharmaceuticals, and talent. And when a nation reaches that point, when it can feed its people, educate its youth, launch its satellites into orbit, it begins to see itself not as a follower in the world order, but as a shaper of it. There's also a matter of geography and history. India sits at the heart of Asia, surrounded by opportunities and challenges that the United States can't fully experience from across the ocean. That means when India speaks up about regional security, trade routes, or the rules of technology and energy, it speaks with the authority of one who lives in the neighborhood. But let's be clear, standing up doesn't mean walking away. It means engaging on equal terms. It means saying, we respect you, but we will chart our own course, and in a healthy international community, that's a good thing. It forces all of us. Thank you. आर्मी सतह पे बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। अभी अभी मैंने ये खबर पढ़ी है और आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं लाइव आने लगा था एक क्लिप मेरी नजरों से गुजरा और जो मैं बड़ी खबर आपके गोश गुजार करने जा रहा था उससे भी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। आर्मी सतह पे हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। if Obama did this, the right would be saying, this is India's growing economic strength and self-reliance in 2025 are not sudden phenomena. They are the result of decades of calculated policy, societal transformation, and resilience in the face of global pressures. To understand why this economic rise has translated into greater independence from the United States, it's necessary to look at how India's economic journey has evolved, how its domestic capabilities have matured, and how global economic trends have shifted the balance of power. In the आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खास तौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया। that can sustain itself financially is far less likely to be swayed by the promise or withdrawal of foreign funds. A key element of India's economic resilience is its diversification of trade and investment sources. Instead of relying predominantly on the United States and Western markets, India has cultivated deep economic ties with Southeast Asia, Africa, the Middle East, and Latin America. Energy deals with Gulf nations, technology collaborations with East Asia, and agricultural exports to African markets have lessened the risk of economic dependency
on any single country. राना कैसर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कहा जा रहा है कि ये जो अनप्रिडिक्टेबल हैं और कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन तगड़ा मुकाबला है, दोनों ही लफ्जी गोलाबारी भी एक दूसरे पर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इनका जो मोदी साहब, आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सेंक्शन लगाने वाला। ठीक हो गया, तो इसी से आप देखिए इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है। आप गूगल सारा वहाँ से हैंडल कर रहे हैं। ठीक हो गया, आप टाटा एक कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी एक अच्छी खासी चलने वाली कंपनी। ठीक हो गया, आपका टेस्ला, आपका एप्पल सारा वहाँ पे जनरेट हो रहा है। और जिस दौरान आलमी सफबंदी हो रही है, पाकिस्तान को जर्नैलों ने अपनी बांदी बनाया हुआ है, हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है। ना हम तरक्की कर सकते हैं, ना अक़वाम आलम में कोई मकाम हासिल कर सकते हैं। मैं आपको इन दोनों डेवलपमेंट से आगाह करूंगा और आप खुद तस्लीम करेंगे कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं जिनके पाकिस्तान पे बड़े गहरे असरात होंगे। 3 साल और 3 महीने पड़े हुए हैं, तो ट्रंप से बहुत कुछ चाहिए, और जैसे ही ट्रंप जाएगा तो शायद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया इज इसेंशियल और क्रिटिकल पार्टनर है सप्लाई चेन में, क्योंकि सारी की सारी जो डेमोक्रेटिक दौर में जो सप्लाई चेन थी उसको कन्वर्ट किया गया था इंडिया में। अमेरिका ठीक हो गया, और इंडिया अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत बड़ा एक कंट्री है। ठीक हो गया, जिसका अमेरिका को HBA के अमेरिका की काफ़ी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंडिया में आती हैं। ठीक है, अगर अमेरिका इस पे सेंक्शंस लगाता है या टैरिफ अप्लाई करता है इंडियंस प्रोडक्ट पे, तो ऑब्वियसली इंडियंस, फिर मोदी भी उस पर अप्लाई करेगा। तो ये होगा कि अमेरिका जो है वो अगेन स्टैंड अलोन हो जाएगी, क्योंकि चाइना और इंडिया के सेम बॉर्डर्स हैं। अगर वो इकोनॉमी में फ्री, ट्रम्प कर क्या रहा है? ट्रम्प बस यही चाह रहा है कि वो अपना मुल्क को अगेन ठीक करे, बट लेकिन उसकी जो पॉलिसीज है ना, वो तो बिजनेसमैन बनने की ट्राई कर रहे हैं, नो डाउट वो है। बट ये कह सकते हैं कि जब भी आप ये टैरिफ और सेंक्शंस की तरफ जाएंगे ना, तो आप अपने अगेंस्ट किसी का कहता है कि व्हाई दिस फ्रेंड शोरिंग व्हेन अमेरिका नीड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रम्प का प्रॉब्लम ये है, ये जो लोग हैं वो कहते हैं फ्रेंड शोरिंग करो, नियर शोरिंग, जो कि बेसिकली उस वक्त जैक सुलिवन और ये सारे लोग करते थे। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने क्या भाषण दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे। बराक ओबामा थे, और दोस्तों उनकी ही कॉपी कौन कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों बात यह है कि पहले बराक ओबामा थे, उनको शांति का पुरस्कार मिला था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मेरे को भी वो शांति का पुरस्कार मिले। लेकिन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा काम किया नहीं कि उनको शांति का पुरस्कार मिल जाए, क्योंकि उन्होंने झूठ में झूठ बोला है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीज फायर करवाया है वो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है, जबकि इसका सच का खुलासा हमारे डॉक्टर जयशंकर जी ने कर दिया है। तो दोस्तों